Good evening, students. Today we will discuss about the functional group. What is meant by functional group? So, functional group. What is functional group? Functional group means what? Atom or group of atoms. या तो वो atom हो सकता है और group of atom. Atom like Cl, Br, I, right? Or group of atoms like OH group, NH2 group, OCH3 group like this. So they are called as the atoms or group of atoms which gives characteristic properties to the compounds. जो कंपाउंड्स को एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से उनको पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दे आर कॉल्ड एज द फंक्शनल ग्रुप्स. व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप? तो फंक्शनल ग्रुप मींस एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स which gives characteristic properties to the compounds. For example, CH3OH. Example CH3OH, that is methyl alcohol. CH3 means methyl group and OH means alcoholic group. So OH group is called as functional group. It is the combination of two atoms, one oxygen and another one hydrogen. Oxygen and hydrogen, they combine together to form alcoholic group. This OH group is called as alcoholic group and this is functional group. Alcohol का functional group कौन सा है? तो single bond OH. That means this OH gives a characteristic property to the compound and that's why this is the functional group. That means functional group या तो atom हो सकता है जैसे CH3 single bond Cl, methyl chloride single bond Cl, this is a functional group. ये एक एटम है जो इसको एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर रहा है. जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं उनको बोला जाता है फंक्शनल ग्रुप. तो ये हलाइड कैटेगरी में आएगा. जैसे इसको अपन जनरल में लिख सकते हैं सिंगल बॉन्ड X, दैट मींस X इज अ फंक्शनल ग्रुप. सो एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम व्हिच गिव्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज टू द कंपाउंड्स, दे आर कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप. Define functional group. What are functional group? So functional group means atom or group of atoms which gives characteristic properties to the compounds. Now before starting functional group, we must know hydrocarbons. Basic part of hydrocarbon. What are hydrocarbon? So hydrocarbons name itself indicate it consists of carbon and hydrogen. Yes, they are the compounds containing carbon and hydrogen as a constituent element. दो एलिमेंट इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट है, वन इज हाइड्रोजन एंड अदर इज कार्बन. सो दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे कंटेन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. फॉर एग्जांपल अल्केन्स, यू माइट बी लर्निंग 9th or 10th क्लास, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन्स. देन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स दे आर द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड. इसमें भी कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड. सपोज डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट कार्बन कार्बन, देन इट इज कॉल्ड एज अल्कीन. एंड सपोज कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, देन इट इज कॉल्ड एज अल्काइन्स. फर्स्ट पार्ट देखते हैं सैचुरेटेड में का, अल्केन्स. व्हाट आर अल्केन्स? तो अल्केन्स आर द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टार्टिंग बोलते हैं अपन, तो वो है अल्केन्स. तो अल्केन्स में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है और जनरल फॉर्मूला देखो क्या है इनका अल्केन्स का, CnH2n+2. दैट मींस जनरल फॉर्मूला CnH2n+2. दिस इज जनरल फॉर्मूला where n means number of carbon atoms depending upon number of carbon atoms. If n is equals to 1 then value substitute करो, n 1 आ जाएगा, h कितने आ जाएगा, 2 into 1 2 plus 2 4, C1H4, that means CH4. This is called as methane. If n is equals to 2 then we get 2 2s are 4, 4 plus 2 6, that means C2H6. This is called as ethane. If n is equals to 3, n की वैल्यू 3 है, 3 into 2 6, 6 plus 2 8, that means propane. Their names are given. 4 carbon atom butane, and that means C4H10. डबल से दो ज्यादा, कार्बन 3 है, डबल 6 plus 2 8, कार्बन 4 है, डबल 8 plus 2 10, कार्बन 5 है, डबल 10 plus 2, that means C5H12. This is called as pentane. Then C6, n की वैल्यू 6 है तो फॉर्मूला आएगा C6H double plus 2, that means 14, hexane. If n is equals to 7 then formula becomes C7H16, उसके double plus 2, that means heptane. Then n is equals to 8, C8H18, octane. N is equals to 9, C9H20, no name.
and last N is equals to 10, then C10H22. This is called as decane. So all they are the alkanes. They contain simply carbon-carbon single bond in their structure. Methane में अगर देखते तो एक ही कार्बन एटम प्रेजेंट है. One carbon atom is there, and as we have seen, carbon is tetravalent. Tetravalent. Maximum tendency of carbon to form bond is 4. As it contains 4 electrons in its outermost shell, and therefore it is tetravalent in nature. It can form 4 bonds. Always remember. So one carbon atom is present at the center, 4 hydrogen atoms at the 4 corner. Hydrogen is monovalent. That's why each hydrogen forms single bond, but carbon form 4 bonds. Then see another example. This is the example of methane, CH4 structure. Then ethane, C2H6. Now C2H6 कैसे, तो 2 कार्बन निकालो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड. अब ये कार्बन का अगर देखते हैं तो एक बॉन्ड हो चुका है, दैट मींस 2 3 4. 4 में से एक हुआ है 3 हाइड्रोजन, इसका भी एक हुआ है 3 हाइड्रोजन. दैट मींस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 लाइक दिस. This carbon atom 3 hydrogen CH3, this carbon atom CH3. That means CH3 और उनके बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड. This is called as ethane. Then propane है तो 3 कार्बन एटम निकाल लो, 1 2 3 like this. अब ये कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, मतलब इस पर 3 हाइड्रोजन होंगे, 1 2 3. इसको अपन कैसा लिख सकते हैं, H3. देन ये कार्बन पर देखो 2 बॉन्ड हो चुके हैं, 1 2 आउट ऑफ 4. वैलेंसी इज 4 में से 2 बने हैं, और 2 बना सकता है, मतलब इस पे 2 हाइड्रोजन. ऊपर नीचे जो मैंने अरेंज किया उसको डायरेक्ट अपन लिख सकते हैं H2. देन थर्ड वाला जो है, थर्ड या फर्स्ट समझ लो, तो इधर में अगर जाते हैं तो कार्बन का एक बॉन्ड हुआ है, दैट मींस 2 3 4. सो टोटल हाइड्रोजन 3. सो दिस इज द CH3 CH2 CH3. ऐसा लिखो, मीनिंग एक ही है. ये मीनिंग एक ही है. सो दीज आर द अल्केन्स. यहां तक में कोई आइसोमेरिज्म नाम का वर्ड नहीं आता है. आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म क्या है, तो आइसोमर्स मतलब मोर देन वन स्ट्रक्चर अगर पॉसिबल होते हैं कंपाउंड्स के, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, देन दे आर कॉल्ड एज आइसोमर. बट प्रोपेन तक आइसोमर्स नहीं है. आइसोमर की स्टार्टिंग होती है 4 वाले कार्बन से, दैट मींस ब्यूटेन. व्हिच वन, ब्यूटेन. फॉर्मूला C4H10. यहां से आता है एक नया पार्ट जिसको बोला जाता है आइसोमेरिज्म. अब ब्यूटेन का अगर देखते हैं तो पहली पॉसिबिलिटी क्या करता हूं मैं, 4 कार्बन एटॉमिक लाइन में 1 2 3 4 हाइड्रोजन दे दो. कितने हाइड्रोजन लग सकते हैं, तो कार्बन का एक बॉन्ड बना है ये वाले, मतलब इसको 3 हाइड्रोजन लग सकते हैं. 1 1 1 दे दो या फिर डायरेक्ट H3 कर दो. सेकंड कार्बन के कितने बॉन्ड बने वो देखो, 1 2, मतलब और 4 में से 2 बने हैं तो और 2 बना सकता है, इसलिए H2. ये कार्बन में देखो 2 ऑलरेडी बन चुके हैं 4 में से, मतलब वो 2 बनाने कैपेबल है. और ये कार्बन लास्ट का या फिर फर्स्ट का, इसमें एक ही बॉन्ड बना है 4 में से, मतलब 3 आएंगे हाइड्रोजन. सो दिस इज द पॉसिबल स्ट्रक्चर फर्स्ट. दिस इज कॉल्ड एज N-ब्यूटेन. N स्टैंड्स फॉर नॉर्मल. ये नॉर्मल टाइप का ब्यूटेन है, कोई एबनॉर्मल नहीं है, कोई ग्रुप लटक नहीं रहा बीच में, सीधे सीधे एक लाइन में अगर है तो उसको बोला जाता है N. And prefix is used when all carbon atoms are connected in a straight chain. So this is the structure of N-butane. Now second possibility, 4 कार्बन आइटम है तो अपन दूसरी अरेंजमेंट क्या कर सकते हैं, 1 2 3 और एक को दे सकते हैं ब्रांच, लाइक दिस. ब्रांच मस्ट बी एट मिडल और बट 1 पर होनी चाहिए. ये अगर तुम ऐसे निकालेंगे 1 2 3 और 4 और बोलेंगे ये ब्रांच है, तो दिस इज नॉट ब्रांच, दिस इज अ स्ट्रेट चेन लाइक दिस. ये ऐसे निकालो और ये CH3 को ऐसा नीचे कर दो, एक ही बात है. इसलिए ब्रांच जब भी दोगे तो समझो कि एक कार्बन आइटम छोड़ के देगी है तुमको. सो दैट इज कंसीडर्ड एज अ ब्रांच स्ट्रक्चर. अब देखो फिर से वैलेंसी वाला, इधर कार्बन का एक बॉन्ड बना है, मतलब H3 होगा. ये कार्बन के 1 2 3 बने हैं 4 में से, मतलब एक ही H लगेगा, राइट. इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना है, मतलब H3 लगेगा. इस कार्बन का भी एक ही बना है 4 में से, तो H3. Now this structure is called as isobutane. Which one? Isobutane. अब iso वर्ड क्यों आया, तो ब्रांच एक छोड़कर अगर होती है तो उसको बोला जाता है isobutane. That means N-butane and isobutane, they are isomers of each other. They are isomers of each other. Why they are isomers? So they have same molecular formula C4H10. दोनों का molecular formula चेक करो. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मतलब कौन से एटम से कितने हैं, सिंपल. कौन सा एटम है, कार्बन,
ठीक है, और हाइड्रोजन, दोनों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कुछ नहीं है। कार्बन कितने हैं तो 1 2 3 4, इसमें कार्बन 1 2 3 4, दैट मींस CH4। हाइड्रोजन कितने हैं 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10, इधर 3 3 6 6 3 9 + 1 10, मतलब दोनों में क्या सेम है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट मींस दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। Compounds having same molecular formula but different structure of the formula, they are called as isomers of each other, and this phenomenon is known as isomerism. That means this is isomerism. Butane have two isomer, propane do not show isomerism, propane का isomerism नहीं है, butane and onwards, even pentane भी बनाता है, pentane के तो 3 बनते हैं मैक्सिमम, फिर आगे की 3 तो बनते ही नहीं है, एन है, आइसो है और एक नियो बनता है। कैसे देखो, पेंटेन फॉर्मूला C5H डबल प्लस 2, 5 के डबल 10, 10 + 2 12। इसमें पहली पॉसिबिलिटी क्या करता हूं मैं 1 2 3 4 5, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या करता हूं 1 2 3 4 और ब्रांच यहां पर नहीं दे रहा हूं मैं, इधर से एक छोड़ के या फिर इधर से एक छोड़ के, लाइक दिस। और तीसरी पॉसिबिलिटी जो ब्यूटेन में नहीं बनी, क्योंकि ब्यूटेन में टोटल कितने थे 4, अभी मैं यहाँ पर क्या किया, पहले स्ट्रेट चेन कितने की दी 5, फिर स्ट्रेट चेन कितने की दी 4, अब स्ट्रेट चेन कितने की दे दो 3, एक ऊपर में और एक नीचे में ब्रांच डाल दो। दिस इज कॉल्ड एज नियो। व्हेन वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम, स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज नियो। ये वाला नॉर्मल रहेगा, एक लाइन में है, मतलब n वाला n पेंटेन, ये वाला एक छोड़कर है, मतलब ये आइसोपेंटेन और ये नियोपेंटेन। हाइड्रोजन एडजस्ट करो फिर से, H कितने तो 3, क्योंकि एक ही बॉन्ड है, ये कार्बन के 2 है H2, ये कार्बन के भी 2 बॉन्ड बने हैं 4 में से, मतलब H2, इन्हीं को 4 चाहिए अपने को, 4 में से 2 बने हैं तो 2, इधर भी 2 बने हैं H2, इधर एक ही बना है H3। नाउ दिस इज कॉल्ड एज N-pentane। N normal type of pentane is there, then H3 one bond is there, two bonds are there, that means H2, 3 bonds are there, 1 2 3, therefore H3, 4 में से 3 बने हैं तो एक ही H लगेगा, इस कार्बन का एक ही बना है देखो यहाँ पर तो H3, इसका भी एक ही बना है तो H3, and this is called as isopentane। ब्रांचिंग वन छोड़कर है, that is iso, इधर भी ले सकते थे क्योंकि यहाँ पर ये ग्रुप ना होते, इधर CH फिर इधर CH2 आता है, that is also isopentane। एंड लास्ट वन सी हियर, एक बॉन्ड बना है 4 में से H3, इधर भी 1 बॉन्ड इज देयर, दैट मींस H3, 1 बॉन्ड इज देयर H3, 1 बॉन्ड इज देयर H3। नाउ सी सेंट्रल कार्बन एटम 1 2 3 4, all the 4 valencies of carbon get satisfied, and therefore there is no chance for attachment of hydrogen. This is called as neo। सभी पेंटेन ही है, पर एक n वाला है, एक आइसो वाला है और एक नियो वाला। नियो कंडीशन कब अप्लाई करना है तो व्हेन वन कार्बन एटम इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन एटम, दैट इज कॉल्ड एज नियो। सो N-pentane, isopentane, neopentane, they all are isomers of each other, again all of them having same molecular formula C5H12। किसी का भी फॉर्मूला चेक करो सेम ही आएगा, कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन 1 2 3 4 5, कार्बन 1 2 3 4 5, सब में कार्बन कितने हैं 5। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 3 + 2 5 7 9, 9 + 3 12, 3 + 2 5 6, 6 + 6 12, देन हियर कार्बन के साथ 3 3 6 3 9 और यहाँ पे 12। That means all of them have same molecular formula but different structural formula, then they are called as isomers of each other, and this phenomenon is called as isomerism। हेक्सेन के लिए ऐसे ही बना के देखो, n हेक्सेन बनेगा, पहले पूरे 6 कार्बन एटम एक लाइन में अटैच करके हाइड्रोजन की वैलेंसी, कार्बन की वैलेंसी बराबर हाइड्रोजन एडजस्ट करके दे दो। देन सेकंड पॉसिबिलिटी 5 एक लाइन में निकाल के एक को ब्रांच के फॉर्म में एक कार्बन छोड़ के देनी है, देन कौन सा बनेगा वो आइसोहेक्सेन और एक नियो। नियो में क्या करना पड़ेगा, अभी जैसे अपन ने 3 दिए थे वहां पर 4 एक लाइन में, एक ऊपर और एक नीचे, नियो हेक्सेन। और इसमें समझो कि नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का नेचर 4 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। नेचर ऑफ कार्बन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के नेचर 4 टाइप में, पहला जो है प्राइमरी कार्बन, इस कार्बन प्राइमरी कार्बन, इट इज डिनोटेड बाय दिस
1 raised to the power 0. This is called as primary. A primary carbon क्या? तो carbon which is attached to only one carbon is called as primary carbon. For example, this carbon is primary carbon. Why primary? Because it is attached to only one carbon. This is also primary. It is attached to only one carbon. Secondary carbon. It is denoted by 2 to the power 0. Secondary carbon. Again, same carbon atom which is attached to two other carbon atom. For example, this one. This is secondary carbon because this carbon atom is attached to this carbon atom and again attached to another carbon atom. एक कार्बन दो को अगर अटैच है तो वो सेकेंडरी. इवन दिस वन इज आल्सो सेकेंडरी अटैच टू टू अदर कार्बन. इसके साथ आइडेंटिफाई करके आना चाहिए. बहुत इजी है. वो कार्बन का कितने कार्बन के साथ में अटैचमेंट है. जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दैट यू कैन डिसाइड द नेचर. द थर्ड वन इज टर्शियरी कार्बन एटम. which carbon? Tertiary carbon atom. Carbon atom attached to three other carbon atom. See here, this carbon atom is tertiary. Why tertiary? Because it is attached to three other carbon. 1, 2, 3. तीन से directly attached है. That's why it is tertiary. ये तीनों कौन से हुए? तो primary. This one is primary. This one is primary. This one is because all of them attached to only one carbon. And last new or quaternary carbon represented by 4 to the power 0. Carbon atom which is attached to four other carbon atom. Which one? Yes, this is quaternary or new carbon which is attached to four other carbon. देखते साथ आइडेंटिफाई करके आना चाहिए. इसमें प्राइमरी कार्बन कितने हैं? 2. कौन सा? तो फर्स्ट एंड लास्ट because they are attached to only one. मतलब ये प्राइमरी ये प्राइमरी और बीच का ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी ये सेकेंडरी क्योंकि ये सब दो को अटैच है. मतलब इस स्ट्रक्चर में प्राइमरी कार्बन कितने हुए? 2. सेकेंडरी कार्बन एटम कितने हुए? 3. बट इस स्ट्रक्चर में प्राइमरी कार्बन 1 2 3 राइट. प्राइमरी 3 1 2 3. सेकेंडरी कितना? तो 1. दिस वन इज सेकेंडरी एंड दिस वन इज यस tertiary carbon atom 1. In this new pentane primary carbon atom 1 2 3 4. 4 carbon atoms are primary. Secondary है क्या? No. Tertiary no. New yes. Quaternary or new that is 1. Got it? So today we have seen introduction of functional group, then hydrocarbon, alkane, particularly isomerism and nature of carbon. Got it? Okay, thank you.